ہماری کلاس میں 2 لڑکے اور تقریباً 10 لڑکیاں تھیں۔ سب کی ہی آپس میں اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ ہم میں سے کچھ لڑکیاں ایک ہی اسکول سے آئی تھیں، وہ پہلے سے آپس میں دوست تھیں، لیکن میری اور فرحانہ کی کسی سابقہ ہم جماعت نے یہاں داخلہ نہ لیا تھا۔ یہ ایک قدر مشترک ہونے کی وجہ سے ہم دونوں پہلے ہم نشست ہوئیں اور پھر سہیلیاں بن گئیں۔ یہی معاملہ فرحان اور صفدر کا تھا۔ یہ دونوں لڑکے الگ الگ اسکولوں سے آئے تھے، لہذا آپس میں دوستی کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، ہر جگہ اسے کسی دوست یا ساتھی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ فرحان بہت سنجیدہ اور شریف سا لڑکا تھا، وہ کم گو بھی تھا، جبکہ صفدر شرارتی اور شوخ تھا۔ وہ لڑکیوں سے بھی گپ شپ کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ فرحان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی۔ اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اساتذہ بھی اسے پسند کرتے تھے اور وہ اسٹاف میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک روز وہ فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میں نے اس کے قریب جا کر از خود کلام کیا، کیا آپ کے پاس کل کے نوٹس ہیں؟ جواب میں اس نے مجھے اپنی ڈائری دے دی۔ اس روز وہ جب کلاس میں داخل ہوا تو بہت خوش لگ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے چہکتے ہوئے دیکھا۔ اگلے روز وہ کالج کی راہداری میں کھڑا تھا۔ میں قریب سے گزری تو بات نہیں کی، لیکن لیکچر سے پہلے جب کلاس میں جانے لگی تو اس نے مجھے پکارا، ندا سنو۔ میں ٹھہر گئی۔ وہ کچھ جھجکا ہوا سا تھا، پھر اس نے کہا، بات کچھ نامناسب ہے، لیکن پلیز اب برا مت مانیے گا۔ جی کہیے، میں برا نہیں مانوں گی۔ کیا آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ سوری، میں نمبر نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر وہ مایوس سا ہو گیا۔ تبھی مجھے ترس آ گیا اور میں نے یہ سوچ کر نمبر دے دیا کہ یہ ایک شریف لڑکا ہے، کسی غلط بات کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ گھر جا کر اس کو SMS کیا اور تھوڑی خفگی جتلائی۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ کچھ سوالات کے بارے بات کرنا چاہتا تھا، تب ہی نمبر لیا ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ روز فون پر مختصر بات کرتا، یوں ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ ابھی ہماری جان پہچان کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ اس نے کالج سے چھٹی لی اور لاہور چلا گیا۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتے ہی رہوں۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ہمراہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئی، وہاں وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا بہت خوشگوار موڈ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تب ہی میں نے اسے SMS کیا کہ کہاں ہو؟ میں ایک ہوٹل میں ہوں، اپنی کزن کے ساتھ، ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں۔ اس نے سچ سچ بتا دیا۔ ابھی تک اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت جلن ہوئی کہ یہ کیوں کسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ اس دن کے بعد میں اس کے ساتھ اکھڑے اکھڑے انداز سے بات کرنے لگی۔ اس باعث وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا، لیکن مجھ سے ناراضی کی وجہ دریافت نہ کی، جبکہ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کچھ پوچھے تو بات کروں کہ وہ اوون تھی جس کے ساتھ تم ہوٹل میں اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، یہاں تو تم مسکراتے تک نہیں ہو۔ جب اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تم کیوں روٹھی روٹھی ہو، تب یقین ہو گیا کہ اس کا معاملہ اسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ ایک روز جب صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اس سے جھگڑ پڑی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ کہہ دیا کہ تم جس کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ رہو اور اب کبھی مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ اس نے مجھے کئی بار فون کیا، لیکن نہ جانے مجھ کو کیا ہو گیا تھا، میں ہر بار بغیر سنے فون بند کر دیتی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر غصہ آتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ اس طرح دوستی کا ناتا خود میں نے ہی توڑا۔ اسے بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی، جو وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا۔ وہ لاہور سے واپس آ گیا تھا، مگر پہلے جیسا نہ رہا تھا، وہ بہت بدل گیا تھا، سب سے الگ تھلگ، بیزار سا اکھڑا اکھڑا رہتا۔ مسکرانا تو کجا کسی سے بات تک نہ کرتا۔ انہی دنوں ضمنی امتحان میں اس کی اول پوزیشن آ گئی۔ ہماری کلاس کی چند طالبات نے اس سے ٹیوشن لینے کی استدعا کی تو وہ ان کو فارغ وقت میں پڑھانے لگا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تو مجھ کو جلن ہونے لگی۔ جب وہ اس لڑکی ربیہ سے بات کرتا تو مجھ پر قیامت گزر جاتی، کسی پل چین نہ آتا۔ میں نے پھر سے اسے SMS کرنے شروع کر دیے۔ فون پر بھی رابطہ کیا، لیکن فرحان نے ٹھیک طرح بات نہ کی۔ یقین ہو گیا کہ اس نے کسی اور سے دل لگا رکھا ہے۔
मैं बुझी बुझी रहने लगी, पढ़ाई में भी दिल ना लगता था। वक्त भारी कदमों से मुझको रोंदता जाता था। दिन काटे नहीं कटते थे, पढ़ाई से भी दिल हट गया। एक रोज मेरी दोस्त फरहाना ने बताया कि फरहान की कजिन हमारी लेक्चरार से मिलने आई है। ये वही कजिन थी जिसको मैंने इसके साथ होटल में बैठे देखा था। बातों बातों में मैडम से पूछा तो उसने बताया कि ये उनकी बचपन की दोस्त है और फरहान के बड़े भाई की बीवी है। शौहर अरसे से कतर में है और अब ये भी वहां जा रही है, तभी मिलने आई थी। ये 2 बच्चों की मां और फरहान के चचा की बेटी है। इतनी तफसील जानकर मेरी आंखें खिल गईं। खुद पर गुस्सा आने लगा कि बगैर सोचे समझे क्यों दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। घर पहुंचकर फरहान को फोन किया और मुआफी मांगी, मगर इसने कोई बात ना की। कुछ तो बोलो, मैंने मिन्नत समाजत की, तब वो गोया हुआ मुझे अफसोस है। मैं तुमको ऐसे जहन की लड़की नहीं समझता था, तभी पसंद किया और तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारी शक्की तबीयत ने हमारी दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया। मैंने कई बार तुमको मनाने की कोशिश की, ये बताना चाहा कि वो मेरी भाभी हैं जिनके बारे तुम गलत सोच रही हो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात भी सुनना गवारा न की। तब मैंने फैसला कर लिया कि किसी शक्की मिजाज लड़की के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा और तुम्हारे लिए भी, तो हमको अपनी अपनी जिंदगियां और खुशियां दियों पर नहीं लगाना चाहिए। ये कहकर इसने फोन रख दिया। इसके बाद वो कॉलेज नहीं आया। इसकी तलाश में मैंने सर धन लिया, मगर बेसूद। उसका नंबर भी बंद मिलता था। राब्ता करना चाहा, ना कर सकी। आखिर कब तक, जबकि मेरी पुकार इस तक पहुंच ही ना सकती थी। दुआएं करती, काश एक बार वो मुझे फोन कर ले तो इससे मुआफी मांग लूं कि फरहान, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो। मैं तुम जैसे इंसान को खोना नहीं चाहती, लेकिन मैंने उसे खो दिया था क्योंकि मैंने देवर भाभी जैसे मुकद्दस रिश्ते पर शक किया था। इसकी ये सजा मिली कि मुझको अपनी मोहब्बत से दायमी जुदाई मिल गई। मैं काफी अरसा परेशान रबी, इम्तिहान भी ना दे सकी। फरहान को भुलाना चाहा मगर नहीं भुला सकी। एक फांस थी जो दिल में खुब गई थी, जो फिर ना निकल सकी। इसके बाद जिंदगी के जितने भी दिन गुजारे, एक मुर्दे की मानिंद गुजारे। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता, बस तेजी से गुजरता चला जाता है। हमको उसके गुजरने का एहसास तक नहीं होता। कई रिश्ते आए लेकिन मैं शादी से इनकार करती चली गई। बिलाखिर उम्मी अबू इस कदर खफा हुए कि उनकी खातिर सर तस्लीम खम करना ही पड़ा। मेरे नसीब में जो शख्स जीवन साथी के तौर पर लिखा गया था, इसके साथ शादी हो गई और नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। निसार बहुत अच्छे इंसान थे, मुझको खुश रखने की कोशिश करते थे। मैं भी बज़ाहिर खुश नजर आने की कोशिश करती, मगर दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, और दिल ऐसी चीज है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। शादी के चंद साल बाद मेरे शौहर का तबादला हो गया। जहां हम गए वहां भी दिल ना लगा। ये पहाड़ी इलाका था। उन्हीं दिनों जबकि मैं ज़हनी तौर पर इज़्तिराब में थी, मेरी एक लड़की से मुलाकात हो गई जिसका नाम समीना था। ये एक मकामी लड़की थी और हमारे पड़ोस में रहती थी। बहुत अच्छी आदात की मालिक थी। जल्द ही मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। इसकी बातें बहुत सादो मासूमाना होती थीं। मेरे दिल की उदासी को इसने भांप लिया। एक दिन कहने लगी, बाजी, मुझे लगता है आपको कोई बेसुकूनी है। बुरा ना मानो तो पूछूं, क्यों उदास रहती हो? क्या किसी की याद सताती है? हाँ, एक दोस्त की क्या करूं, भुलाना भी चाहूं तो नहीं भुला सकती। तभी अपने शौहर को भी नजरअंदाज करती हूं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर सकती। उसका एक हल है मेरे पास, अब मेरे दादा के गांव चली। वहां एक शख्स है, नाम नहीं मालूम, मगर लोग उसको अलिले वाला कहते हैं। वो अजीब आदमी है, बस एक बार आपको गौर से देखकर फूंक मारेगा तो आपकी ज़हनी परेशानी दूर हो जाएगी और आप भली चुंगी हो जाएंगी। क्या कह रही हो समीना? ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसे पैरों फकीरों पर यकीन नहीं रखती। वो पीर फकीर नहीं बाजी, बस नेक आदमी है, बुजुर्ग है। तुम और क्या जानती हो इसके बारे में? मैंने समीना से पूछा। कुछ ऐसा हाल सुना है कि अब सुनेगी तो हैरान रह जाएंगी।
इस दुनिया में अल्लाह ताला के बनाए कई तरह के इंसान और मखलूक़ात और रंग का है। कब इलाके में वारिद हुआ इसके बारे मुझको ज्यादा मालूम नहीं, मगर हमारे गांव में वो लोगों का मरकज निगाह है। इस वक्त शुरू में वो गांव के बाजार में दुकानदारों और इलाके के लोगों का बोझ उजरत पर उठाने का काम करता था। इसी पर उसकी गुजर बिसर थी। उसने शादी नहीं की, मजदूरी की उजरत से वो अपना खर्चा पूरा करता था। एक बार किसी को इसने अपना नाम लतीफ बताया था, लिहाजा लोग उसे बाबा लतीफ कहा करते थे। इस बंदे को सिवाय ईदैन के कभी किसी ने अच्छे लिबास में नहीं देखा। उसका कहना था कि अगर अच्छे और उजले लिबास जेब तन करूंगा तो कौन मजदूरी देगा। वो 2 मन से ज्यादा वजन उठा लेता था। अगर वजन कम होता तो वो इस बोझ के साथ कोई भारी पत्थर बांध लेता और फिर बोझ को बढ़ाकर लोगों का सामान मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता। उसका ये भी उसूल था कि वो तयशदा उजरत से ज्यादा बरिग्स न लेता था। कोई अगर अपनी खुशी से कुछ ज्यादा रकम देता तो वो लूटा देता और इसरार के बावजूद कबूल न करता। पहले तो किसी को इल्म न था कि ये शख्स कहाँ से आता है और रात को कहाँ चला जाता है। बाद में उसने बाजार में कोई दुकान जो रकबे में छोटी सी कोठरी के जैसी थी किराए पर हासिल कर ली। वो इसे बतौर रहाइश और गोदाम के इस्तेमाल करता था। इसी रहाइशगाह में इसका राशन मसलन गंदुम, मकई और दालों का स्टॉक होता था। ये अजनास वो अजनास की मंडी से चिन चिन कर जमा करता रहता था। लतीफ को बड़े गोश्त से परहेज था, अलबत्ता छोटा गोश्त बकरे वगैरह का खरीद कर लाता और एक बर्तन में कई कई दिन रखता। खुदा जाने वो इसे किया लगाता कि वो हफ्ता भर भी खराब ना होता। कभी किसी ने इसे ये गोश्त आग पर पकाते देखा था और न ही इसके गोदाम नुमा रहाइशगाह में पकाने की सहूलत मुयस्सर थी। ज्यादातर वो खालिस दूध और दही का इस्तेमाल करता जो कई दिन पड़े रहने के बावजूद ना खराब होते। किसी ने कभी उसे बीमार पड़ते नहीं देखा। अगर कोई बीमार इसके पास आ जाता तो वो इसकी हथेली पर फूंक मार देता, बीमार ठीक हो जाता। इस वजह से इसकी करामत की धूम अब दूर दूर तक फैल गई है। लोग अक्सर जाकर उसके पास अपनी तकलीफ बयान करते हैं और वो सिर्फ फूंक मारकर उनको मुतमईन कर देता है और वो जल्द ठीक भी हो जाते हैं। समीना एक माकूल लड़की लगती थी, मगर जब इसने ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि वो कोई अफसाना घड़कर सुना रही है। तभी मैंने पूछा, समीना तुमको ये सब बातें किसने बताएं? वो बोली, मेरे ताया और चचा ने। यूं भी जब कोई रिश्तेदार हमारे आबाई गांव से आता है लतीफ बाबा के बारे ऐसी ही बातें करता है। खैर मैं तो तुम्हारे दादा के गांव जाने से रही और ना ही मैं ऐसे अजीब व गरीब इंसान से मिलना चाहूंगी क्योंकि मुझे उन करामात का यकीन नहीं है। चंद हफ्ते गुजरे, समीना मेरे पास आई और कहने लगी, अफसोस बाजी अब हमारे साथ गांव नहीं गई। बाबा अल्लाह वाला इस जहान से गुजर गया है, वरना आपकी हथली पर फूंक मारकर आपकी परेशानी दूर कर देता। मैंने कहा कि इस अजीब इंसान से दुनिया खाली हो गई है, लेकिन वाकया क्या हुआ बताओ बाजी। यकीन करें कभी किसी ने इसको बुखार में या बीमार होते नहीं देखा था, सिवाय आखिरी दिन के जब वो मर्स अलमौत में गिरफ्तार हुआ। मौत के बारे इसका कहना था कि वो मकामी नदी में नहाने नहीं जाएगा, वरना पानी में डूब कर मर जाएगा। कभी किसी दरख्त पर नहीं चढ़ेगा कि जहां से गिरकर मरने का अंदेशा है, और न किसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ेगा कि जहां से गिरकर मरने का एहतिमाल हो। देखिए, इतना ताकतवर और सेहतमंद इंसान जो इस कदर एहतियात से काम लेता था, आखिरकार मौत से हार गया। तभी मैंने कहा, सच है, मौत एक ताकतवर हकीकत है। जब ये किसी जिंदा पर गालिब आना चाहती है तो अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती है। क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा था? मैंने तो नहीं, मगर मेरी माँ, बाप और चचा ने देखा था। भाई भी मिले थे। वो काफी ऊंचा, लंबा चौड़ा और भारी भरकम था। चचा ने बताया था कि अल्लाह वाला बाबा अपनी जमा पूंजी ताजिरों के पास बतौर अमानत रखवा देता था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अपनी जमा शदा रकम किसी जगह जमीन में दबा देता था। वो बताता था कि पाकिस्तान वजूद में आने के बाद जब हिंदू ताजिरों को गांव छोड़ना पड़ा तो उन्होंने लतीफ बाबा को उसकी रकम लौटाने की पेशकश की थी, जो उसने ये कहकर ठुकरा दी कि मुसीबत की इस घड़ी में वो उनसे ये रकम हरगिज ना लेगा। अलबत्ता जब वो दोबारा वतन वापस आएंगे और उसकी रकम लौटाना चाहेंगे तब वो ले लेगा, मगर उसकी नौबत ना आ सकी कि वो फिर लूट कर अपने आबाई गांव नहीं आए। ताहम बाबा को यकीन था कि वो कभी ना कभी तो आएंगे। वफात के वक्त इस बुजुर्ग की उम्र 70 बरस से ऊपर थी। गांव के लोग चाहते थे कि बाबा की तजहीज व तदफीन में उसके अजीज व आकारिब की शमूलियत हो,
लिहाजा वो इसको गाड़ी में डालकर उसके इलाके की तरफ एक ताबूत में रख कर ले गए। जब वो इस पहाड़ी के पास पहुंचे जिसकी परली जानिब लतीफ बाबा का गांव था, उन्होंने ताबूत को गाड़ी से निकालकर कंधों पर उठा लिया क्योंकि आगे चढ़ाई पर गाड़ी ले जाना मुमकिन न था और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ताबूत काफी भारी था क्योंकि ताबूत के वजन के अलावा बाबा खुद भी एक लहीम शहीम जिस्म वाला आदमी था। ताबूत को चढ़ाई पर ले जाकर दूसरी समत गांव तक पहुंचाना एक दुश्वार काम था, लिहाजा 4 अफराद से ज्यादा मैयत को लोगों ने उठा रखा था। बहरहाल जब वो पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ताबूत अचानक बिल्का हो गया है। उन्हें लगा जैसे ये खाली हो और उन्होंने कोई बिल्का फुल्का तबाह उठा रखा हो। बस वो डर गए। उन्होंने ताबूत कंधों से अतारिकर पहाड़ी पर रख दिया और ये सोचकर उल्टे कदमों लूट आए कि इसके गांव के लोग जो यहां से गुजरते रहते थे, जब उधर से गुजरेंगे ताबूत को ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस पर लतीफ अल्ले वाला लिख दिया था। मैं समझ रही थी कि इस तरह की चौंका देने वाली बातें घड़ना समीना का मशगला है। इसे कुछ न कहा और खामोश हो रही। अगली बार समीना माँ के साथ आई तो उसकी वालिदा ने भी बातों बातों में यही किस्सा सुनाया जो उसकी बेटी चंद दिन कब्ल मुझे सुना गई थी। तब ही मैंने पूछा कि वो था कौन और कहाँ आया था। इसकी माँ बोली, वो हमारे आबाई गांव से चंद मील दूर एक पहाड़ी के उधर से आया था, वही उसका गांव है। लोग कहते हैं कि वो इस वजह से हिजरत करने पर मजबूर हुआ था कि इसके चंद करीबी रिश्तेदार विरासती जमीन की वजह से इसकी जान के दुश्मन हो गए थे, क्योंकि वो इसको दीवाना समझते थे। विरासती जमीन की दुश्मनी के बाइस जब रिश्तेदारों ने इसको तंग किया तो वो साल हा साल अपने गांव नहीं गया। समीना की वालिदा से ये अजीब बातें सुनकर मेरा दिमाग परेशान रहने लगा कि क्या वो वाकई दीवाना था जो गोश्त को कई कई दिन बाद खाता था, जबकि इतनी मुद्दत में तो कच्चा गोश्त गिल सड़ जाता है और इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तभी इस तसव्वुर से मुझे वहशत होने लगती कि अगर वो पुराने गोश्त को पकाता नहीं था तो खाता कैसे होगा। वो जो हल्का वजन उठाने की जगह इसे भारी भरकम करके उठाता था तो इसमें क्या हिकमत थी। ऐसे ख्यालात मुसलसल मेरे जहन को परागंदा रखते तो मेरे जहन से खुद बखुद फरहान का ख्याल महव रहने लगा। एक दिन मैं अपने शौहर के साथ बाजार गई। वहां सड़क किनारे एक जानिब एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो भारी पत्थर ढोकर एक जानिब रख रहा था, जैसे कोई दीवार बना रहा हो। वो ऊंचा, लंबा, मजबूत बदन का था। अलिफ गिरचा उम्र 70 बरस से ऊपर होगी, लेकिन सर तना हुआ और गर्दन में जेकाव था और ना कमर में खम था। हैरत की बात कि इसके बाल भी सफेद न थे बल्कि गिरे यानी सुरमई थे। मेरे खावंद गाड़ी स्टार्ट करने में महव थे, सो मैंने पास जाकर उसे तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। तभी उसने अपनी बुतेल फैलाकर इशारा किया, जैसे कहता हो कि अपनी हथेली फैलाओ। मैंने अपना बात इस दरवेश की तरफ बढ़ाकर हथेली फैला दी और उसने इस पर फूंक मार दी। इसके बाद वो फौरन मुड़ा और खाई की तरफ चला गया और इतराई में गुम हो गया। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ये अजीब और गरीब वाकया हुआ था। मैं फौरन अपनी गाड़ी की तरफ पलटी। निसार उसे स्टार्ट करने के बाद इसमें बैठ चुके थे और हॉर्न दे रहे थे। मैं तमाम रास्ता खामोश रही क्योंकि पसीना पसीना हो रही थी, जबकि पहाड़ी इलाके में जब सर्दियों की आमद हो तो भी मौसम में काफी ठंडक होती है। घर आई बहुत परेशान थी, जैसे कोई गैर मामूली बात हो गई हो। मुझे समीना की बातें याद आईं। सोचा शायद इसी की बातों का असर है या मेरा वहम। बहरहाल मैंने इस वाकये का तज़किरा निसार से नहीं किया, वो भी कहते कि तुम्हारा वाहिमा। अगले दिन समीना को बिला भेजा, वो माँ के साथ आ गई। मैंने ये वाकया उनको बताया। वो पूछने लगी, वो आदमी कैसा था? ऊंचा, लंबा, लहीम शहीम और भारी? वो कहने लगी, ये तो लतीफ बाबा जैसा हुलिया है, लेकिन वो तो मर चुका है। फिर वो कैसे जिंदा दिखाई दिया? और ये बुतेल पर फूंक मारने वाली बात? पता नहीं, मैंने गुमसम होते हुए जवाब दिया। तभी उसकी बेटी बोली, अम्मा तो फिर ये अल्लाह वाले बाबा की रूह होगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे डांटा कि चुप रहूं, पहले ही तुमने अजीब और गरीब कहानियां सुनाकर मुझे काफी परेशान किया है। इस वाकया के बाद में बिल्कुल भी फरहान की याद से गाफिल हो गई, यहां तक कि मेरे दिल ने इसे बिल्कुल भी फरामोश कर दिया। मेरे शौहर ने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम चुप चुप रहने लगी हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? तब मैंने समीना वाली बातें और बाबा वाला वाकया जो मेरे साथ सड़क किनारे पेश आया था उनको बता दिया।
انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، تسلی دی اور اس طرح گلے لگا لیا جیسے کسی ڈرے ہوئے بچے کو تحفظ کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس روز مجھے اپنی پریشانی اپنے جیون ساتھی سے کہہ کر اتنا سکون ملا کہ میں دلی طور پر اپنے شوہر کی ہے کر رہ گئی اور ان سے حقیقتا پیار کرنے لگی۔ وہ تو پہلے ہی مجھے اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، میں ہی ان کو اپنا نہیں رہی تھی اور خیالوں میں فرحان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ خدا کا شکر کہ حقیقت کی دنیا میں آ گئی اور حقیقی زندگی جینے لگی اور خیالی پریشانی سے نجات مل گئی۔ ایک پریشانی سے نجات تو مل گئی مگر ایک اور پریشانی آج بھی لاحق ہے کہ اگر لطیف بابا کوئی تھا اور وہ مر بھی گیا تھا تو اس جیسا بوڑھا آدمی مجھے کیوں نظر آیا؟ کیا وہ لطیف بابا ہی تھا یا اس کی روح تھی یا اس جیسا کوئی اور تھا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جب تک جیوں گی یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہے گا، کیونکہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔